محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ اکاڑا کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت پہ مبنی اہل حدیث کی دعوت کو سن رہے ہیں۔ میں اپنے محدود وقت کے اندر اپنوں اور بیگانوں کی تقسیم کو ختم کرتے ہوئے انسان ہونے کے ناطے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتابیں ہر مسلک کے پاس، ہر گروہ، ہر جماعت کے پاس، ہر کلمہ گو کے پاس، لیکن سیرت کی کچھ ڈیمانڈ ہے اور اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ میں ایک مختصر تمہید اور اس کے بعد 10-12 سیرت النبی کو ماننے اور اپنانے کے تقاضے رکھ کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بھائیوں، اللہ نے ہر انسان کی صورت اچھی بنائی ہے، اور اس کے لیے تین کی، زیتون کی، طور سینا کی اور بلد الامین مکۃ المکرمہ کی قسمیں اٹھا کے اللہ نے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس کی صورت کو اللہ نے اچھا نہ بنایا۔ صورت اچھی بنا کے سیرت کو اچھا بنانے کی ڈیمانڈ کر دی گئی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور ساتھ میں آزادی بھی دے دی ہے کہ تیری مرضیوں کو ہم چھین نہیں رہے۔ یہ زبردستی کا معاملہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھ کہ خلق ہم نے تیری اچھی بنا دی۔ خلق اندر سے جو ڈیل ہوتا ہے، جو سیرت کہلاتی ہے، جو اخلاق کہلاتے ہیں، اس کو ہم اچھا مانگنا چاہتے ہیں، اور وہ تیرے حوالے ہے، تو نے اچھا بنا کے آنا ہے۔ سوال پیدا ہوا، اللہ میری صورت تو نے اچھی بنا دی، میں اپنی سیرت کو، اپنی زندگی کو، اپنے رویے کو، اپنی طرز کو، اپنے طور کو، اپنے طریقوں کو اچھا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے کوئی نقشہ ہے، کوئی آئیڈیل ہے، کوئی ہستی ہے۔ آسمان سے اعلان کر دیا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر اپنی زندگی کو، سیرت کو سنوارنا چاہتا ہے، ایک نام ہے جسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو، سیرت النبی کا پہلا پیغام، سیرت النبی کانفرنس کی پہلی دعوت، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تقاضا، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق اور اس کی پہلی ڈیمانڈ، پہلا ادب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کا سب سے خوبصورت انسان مانا جائے۔ کیوں بھائیو؟ کائنات کا سب سے خوبصورت انسان مانا جائے۔ وقت نہیں،
वगरना किताब अल्लाह से, सुन्नत रसूल अल्लाह से और तारीख से, हिस्ट्री से, सीरत से, अशआर अरबी से, अशआर उर्दू से, अशआर पंजाबी से आज वो समा बनता कि लोगों को पता चलता कि सीरत नबी मानने के लिए पहला हक ये है कायनात के इमाम को दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान माना जाए। दलील इसकी अशहदु अन्ना मुहम्मदा, आपको मुहम्मद माना जाए। आपकी सूरत, आपकी सीरत, आपकी जिंदगी का हर पहलू काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ है। जब आप मुहम्मद हैं, साहिब तारीफ हैं, हमदे अल्लाह के बाद आपके लिए हैं, तारीफें रब आपकी करता है। आपकी सूरत भी आला, आपकी सीरत भी आला, आपकी गुफ्तार भी आला, आपका किरदार भी आला, तो फिर इस आला के होते हुए, इंसानों में मोहम्मद के होते हुए किसी और को वो मुकाम देना, ये मेरे महबूब की सीरत से वफादारी नहीं है, बेवफाई है। बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और। बोल लेना आसान है, बाला गलूला भी कमाल ही कह देना आसान है, लेकिन फिर इस कमाल का ख्याल रखना शायद मुश्किल है। और ये कहना कि आप जैसा हसीनो जमील वहसन मिन कलम तरकत्तु ऐनु, कह देना आसान है, लेकिन जो इतना हसीन है, इतना जमील है, ऐसी कोई विलादत नहीं हुई, मां को हिम्मत नहीं हुई, किसी को ताकत नहीं हुई, रब ने बनाया नहीं है, और उसमें कोई ऐब नहीं, कोई नक्स नहीं। जब ऐब नहीं, नक्स नहीं, मुंह से बोल के तारीफें करना और है, लेकिन अमलन प्रैक्टिकली उसको लेके उसके पीछे चलना और है। ये देखो, मुंह का मिट्ठू कौन है, मियां मिट्ठू कौन है, चूरी खाता कौन है, घी देसी शक्कर लेता कौन है, मुंह मिलते हैं, होठ लब जल आपस में मुलाकात करते हैं, लिका होती है, लेकिन उसके बाद इससे हट कौन जाता है, ये भी चेक करना मेरा और आपका काम है। सीरतुन नबी का पहला पैगाम है, जब कायनात का सबसे खूबसूरत वो है तो खूबसीरत भी वही है। दूसरा अदब मेरे महबूब का, सीरतुन नबी का, उसकी डिमांड और तकाजा कि आपको रसूल से पहले, मुहम्मद को रिसालत से पहले अब्दुहु, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, अब्द माना जाए। क्या माना जाए? तौहीद वाज़े हो जाएगी, दीन वाज़े हो जाएगा, सीरत समझ आ जाएगी। मुहम्मद का तारुफ क्या है, सीरत का तारुफ क्या है, इसका सिलसिला क्या है, हसब और नसब क्या है, जाहो जलाल क्या है, रुतबा और मुकाम क्या है, इज्जत और शरफ क्या है, अल्लाह ने बुलंदी दी है तो क्या दी है। वो माबूद नहीं, वो आबिद है। अहले हदीस का ऐलान क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, वो अब्द है, माबूद और है, आबिद और है, माबूद और है, साजिद और है, मसजूद और है, मुहम्मद और है, रब्बे मुहम्मद और है। ये सीरतुन नबी का पैगाम अगर पास है तो मुबारक हो, अगर नहीं तो तजदीद कीजिए, थोड़ी सी चेंज लाइए और अपने मसलक पे जरा गौर कीजिए और थोड़ी सी तहकीक मजीद कीजिए। शायद अल्लाह समझ दे दे कि अरबी के जुमले पंजाबी में अगर उनका तर्जुमा कर दिया जाए, अरबी के रटे रटाए जुमलों को अगर उर्दू में बोल दिया जाए, अरबी के जुमले जो उकाड़े की सरजमीन में शाये किए जाते हैं, तहरीर और तकरीर में लाए जाते हैं, अगर उन्हीं को बरसरे मिंबर बरसरे बाजार लाके पंजाबी में बोल दिया जाए तो बेअदबी नहीं होती। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, अल्लाह अल्लाह है, मुहम्मद मुहम्मद है, वो रब है, ये मरबूब है, ये साजिद है, वो मसजूद है, ये आबिद है, वो माबूद है, ये और है, वो और है। अगर दोनों एक होते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दो नाम कभी अलग ना होते।
सीरत नबी का तीसरा पैगाम, अदब तकाजा मोहब्बत, बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और। आपको अल्लाह का रसूल माना जाए, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह को हुक्म देने वाला माना जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म पहुंचाने वाला माना जाए, अल्लाह को भेजने वाला माना जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया माना जाए। अल्लाह बेइज्जत फरमा रहे हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेइज्जत हो रही है। अल्लाह बाइस है, ये मबऊस हैं, इनको भेजा जा रहा है, नुमाइंदे हैं, अल्लाह की बातें बताते हैं, अल्लाह के दीन की खबरें देते हैं। जो रब वही भेजता है वो हम तक पहुंचती है। शरीयत अगर लेनी है तो उनको रसूल मान के, नुमाइंदा मान के, एक ही नाम सीरतुन नबी का पैगाम ये है। उकाड़ा के लोगों, कहने की वफा और है, करने की वफा और है। जुबान से कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जुबान से कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इश्तिहार छपते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे बोल बोलते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खिताब होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बयान में बोलते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन जब बारी आती है दीन लेने की, रिसालत लेने की, शरीयत लेने की, हुक्म लेने का, पैगाम रब्बानी लेने का, उस वक्त हम किसी और को अपना इमाम और रसूल समझ लेते हैं। सीरतुन नबी का पैगाम है, रसूल किसको माना जाए? मुहम्मद रसूलुल्लाह को। नुमाइंदा किसको माना जाए? अल्लाह और हमारे दरमियान में हिदायत का ये वसीला, जो इस वसीले को ना माने, वक़्त का अबू जहल बने, कोई अबू लहब बने। आओ अहले हदीस को, वसीले का मुनकर कहने वालों, अहले हदीस उस वसीले को मानता है, काबा के रब की कसम, जिसके बगैर ना दुनिया के अंदर निजात है, ना क़यामत के दिन शफाअत है।